اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن غم حسین منانے کا دن ہے۔ آج کے دن غم حسین کی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے، اور آج کے دن اس لازوال قربانی سے ایک سبق حاصل کرنے کا دن ہے کہ کس طریقے سے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا، سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن باطل کے آگے جھک نہ سکا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس شعر کو پڑھنے کے بعد ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ اس کربلا عظمیٰ کے بعد، اس شہادت عظمیٰ کے بعد آج تک کتنی کربلائیں گزر گئیں، لیکن اسلام پنپ نہیں پا رہا، اسلام زندہ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ شاید ہم شہادت امام حسین کو صرف ان 10 دنوں تک یا 40 دنوں تک مناتے ہیں، اور اس کے بعد اس شہادت کی جو روح تھی اس کو بھول جاتے ہیں، اور یزیدیت ہم پر غلبہ پا لیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنت کے شہزادے ہیں آپ، کس طریقے سے یزید کی یزیدیت کو للکارا۔ جب یزید نے آپ سے بیعت کرنے کو کہا تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ در حقیقت اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنے کا۔ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی نہیں بلکہ یزید کی مانی جائے گی، اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد تو یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانی جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہ جو حاکم ہے یہ غافل ہے، یہ جاہل ہے، یہ بدبخت ہے، یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے والا ہے، یہ اپنی انا کا اور اپنے نفس کا مارا ہوا ہے، یہ انسانوں کو بھٹکانے والا ہے، یہ انسانوں کو تکلیف دینے والا ہے، یہ برائی کو اچھائی کے اوپر غالب کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھ پہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا یہ تمام تر، اگر میں نے خوبیاں بولوں، جنہیں لوگ واقعی حضرت امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے جن چیزوں کو برائی بنا کر بتایا اور حقیقت بتائی، آج کے زمانے میں لوگ ان کو خوبیاں سمجھتے ہیں، انہیں آرٹ آف لیونگ سمجھتے ہیں، انہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ تو مجھے اپنے حکمرانوں میں یہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں کہ جو جاہل بھی ہیں، جو غافل بھی ہیں، جو اپنی مرضی کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، جو اچھائی کے اوپر برائی کو غالب کر دیتے ہیں، جو اپنے دنیاوی آقاؤں کے آگے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو جب ان کے اصحاب نے، جو ان سے محبت کرتے تھے، یہ سمجھایا کہ یہ کوفی بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، ان کی بات پہ لبیک نہ کہیں، کوفہ نہ جائیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی صدا پر اگر میں نے لبیک نہیں کہا، اگر میں نے جہاد کا پرچم نہیں اٹھایا، تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب اللہ رب العزت مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشکل میں پڑ گیا تھا، جب ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو گیا تھا، جب ایک جاہل اور غافل حاکم نے مسلمانوں کے اوپر ان کی زندگی تنگ کر دی تھی، جب دین نبوی کو صحیح طریقے سے
इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था तो ए हुसैन, तुमने जिहाद के लिए आवाज़ क्यों ना उठाई? तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? यही वजह थी कि उन्होंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, जहां पहले ही रोज़ उनको खुशामदेद कहा गया और तकरीबन 12,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर ली और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ये इत्तला दी कि आप यहाँ आ जाएं, कूफी हमारे साथ हैं। मगर क्या पता था कि ये कूफा वाले इस तरीके से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ में बेदबारी का खंजर घोंपेंगे। इस तरीके से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन को तन्हा कर देंगे। नाजरीन, 10 मुहर्रम को 72 तो जानिसार थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन 17 अहले बैत भी शहीद किए गए। कहीं 17 आता है, कहीं 20 आता है, कहीं 22 आता है, लेकिन ये अहले बैत थे जिनकी जानें यजीद ने बड़ी बेदर्दी से ली। और बात यह है कि हम ज़्यादातर जिक्र जो करते हैं वो कुर्बानी हुसैन और कुर्बानी अब्बास का करते हैं, लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ कि चारों जो हमारे खलीफा गुजरे और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, उसमें सबसे ज़्यादा मजलूम हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की ज़ात थी कि करबला में आपके 7 बेटे शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन तो हज़रत अली और बीबी फातिमा खातून जन्नत की औलाद थे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हज़रत अब्बास इब्ने अली, हज़रत अबू बकर इब्ने अली, हज़रत उस्मान इब्ने अली, हज़रत मोहम्मद इब्ने अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अली और हज़रत जाफ़र इब्ने अली ने जाम शहादत नौश किया। तो सोचिए कि ज़रा हज़रत अली के 7 बेटों को ज़िबा किया गया। हज़रत अली के 7 बेटों ने करबला की मिट्टी को अपने खून से सुर्ख किया। इमाम ज़ैनुल आबदीन बहुत रोया करते थे, उनकी रातें रोते हुए गुजरा करती थीं। तो एक दिन एक खादिम ने पूछा कि आप इतना क्यों रोते हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा उनसे जुदा हुआ था 40 साल के लिए और उसके बाद उनको मिल गया था, तो उन्होंने इतने आंसू बहाए कि उनकी बीनाई चली गई। मेरे सामने तो मेरा पूरा ख़ानदान लुट गया। नाजरीन, गमों का हाल देखिए कि अहले बैत ने जो शहादतें पाई उसमें सबसे खूबसूरत हज़रत कासिम थे जो हज़रत इमाम हसन के बेटे थे, और जो पहली शहादत जब 72 जानिसारों ने अपनी जानें दे दी तो फिर अहले बैत मैदान में उतरे, और उसमें सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने जाम शहादत नौश की कि वो हज़रत इमाम हुसैन के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि मैं आपको शहीद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए पहले मुझे इजाज़त दी जाए। तो अहले बैत में आप पहले शहीद हैं, और ज़रा वालिद को देखिए कि किस तरीके से अपने दिल के टुकड़े को इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि अल्लाह की राह में दे रहे हैं, जानते हैं कि इस वक्त इम्तिहान की घड़ी है, जानते हैं कि इस वक्त अल्लाह को राज़ी करना है। एक तरफ अली अकबर और फिर एक तरफ छोटे से 2 साल के अब्दुल्ला, कि जिनको हज़रत इमाम हुसैन ने ख़ैमे की तरफ मुँह करके बुलाया और गोद में लिटाया, और कहीं दिल में ये ख्याल आया होगा कि ये जो दूसरी तरफ खड़े हैं मेरे नाना के दीन के दुश्मन, शायद इनको मेरे नाना की वो तालीम याद हो कि औरतों पे, बूढ़ों पे, बीमारों पे और बच्चों पे हमला ना करना, लेकिन यजीद के एक गुलाम ने बड़ी बर्बरियत के साथ ऐसा निशाना लिया जो सीधा हलक के आर पार हो गया, और आपने हज़रत इमाम हुसैन की गोद में ही शहादत नसीब कर ली। हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी गर्दन से बहते हुए खून को अपने हाथों में लिया और उस खून को हाथों में लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उठाया और कहा कि मेरे रब, अगर तू इससे राजी है तो मेरे लिए ये बड़ा सस्ता सौदा है। सोचिए नाज़रीन कि वो क्या कुर्बानी थी, वो क्या लम्हा था, वो क्या दिन था कि असर के वक्त तक तमाम अहले बैत जाम शहादत नौश कर चुके थे। सरकार अलैहिस्सलाम अपने नवासे को लेने आ चुके थे।
सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी वो सुर्ख हो चुकी थी, और आपने फरमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद कर दिए गए हैं। और ये उस वक्त की बात है कि जब दोनों शहजादे बहुत छोटे छोटे थे और जन्नत से एक के लिए सब्ज और दूसरे के लिए सुर्ख लिबास आया था, और सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई थी कि जान गए थे कि मेरे दिल के टुकड़ों को किस तरीके से कत्ल किया जाएगा। लेकिन बीबी फातिमा से इसका जिक्र नहीं किया कि माँ है, तकलीफ होगी। बहरहाल जन्नत में तो हज़रत अली, बीबी फातिमा, हज़रत इमाम हसन और सरकार अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन के और अहले बैत के मुंतज़िर थे। असर से पहले पहले शहादतें नसीब हुई, लेकिन ये शहादतें दीन को मुकम्मल कर गई। अगर हज़रत इमाम हुसैन चाहते तो यजीद के हाथ पे बैत करके दुनियावी तमाम तर आसाइशों को हासिल कर सकते थे, मगर दीन की तालीम कैसे मुकम्मल होती, दीन कैसे मुकम्मल होता, ये बात कैसे मुकम्मल होती कि बातिल जितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, हक उसके सामने कभी नहीं झुकता। खुदारा आज की शहादत पे सिर्फ आंसू नहीं बहाइएगा, आज की शहादत पे ये अहद कर लीजिएगा कि हम मुसलमानों को कुर्बानी हुसैन का पास रखना है, उस खून की लाज रखनी है, बातिल के आगे खड़ा होना है, क्योंकि हक कभी नहीं मिटता। हज़रत इमाम हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद तो कभी नहीं मरता। यजीद पलीत का नाम कहाँ है, कब्र किधर है, किन पस्तियों में जाके गिर गया, 39 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया, सिर्फ 3 साल उस हुकूमत का मज़ा ले सका जिसके लिए उसने इतना जुल्म किया। तो आज 10 मुहर्रम को जब हम इमाम हुसैन को इतना याद कर रहे हैं, हम अहले बैत को याद कर रहे हैं, हम उन कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, तो उस अहद को भी याद कीजिए, उस बात को भी याद कीजिए जिसके लिए ये कुर्बानी दी गई, और आज से ये अहद कर लें कि ऐसे मुसलमान बनेंगे कि चाहे सर धड़ से जुदा हो जाए, किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकेगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।